हमने किया था यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, empty relation, and also reflexive, symmetric, transitive relation. These were the types of relation. Similarly, here in class 12th, we are studying the types of function. तो function क्या होता था, किसी को याद है? कोई मुझे बता सकता है? What is a function? What is a function? What do you understand by a function? Yes, Nishtha? Ma'am, it is a special type of relation in which, ma'am, all the elements of, ma'am, all the inputs have an output, and no input has two outputs. Very good. So we have done that a function is a special type of relation. एक relation होता है where all the elements of the first set will have a unique image in the second set. मतलब इसकी एक image होगी. It cannot have two images. Any element from the first set cannot have two images, or it cannot have a image. ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक element है जिसकी कोई image ही नहीं है. So in this case, this is a function because every element has a unique image. एक ही image है. इस केस में अगर आप देखोगे इस एलिमेंट की इमेज नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन. या फिर अगर कभी भी ऐसा हो जाता है एक एलिमेंट की दो इमेजेस आ जाएंगी, देन इट इज नॉट अ फंक्शन. राइट? फंक्शन ये था दैट if you are defining a relation from set A to set B or set X to set Y, then every element of set X should have a unique image in set Y. ठीक है? तो मुझे कोई बता सकता है कि ये फंक्शन है या नहीं? बताओ. Is this a function? No, ma'am. This is not a function. क्यों? No. क्यों बताओ आरुषि? Ma'am, because every element will not have a unique image. Like, It just will give have. me an example. So, ma'am, like if we plot any number on the x-axis, so Hmm. like if we are taking a half on the Hmm. x-axis, so ma'am, half will have two images on the negative y-axis as well as on the positive y-axis. Right. So if we check for half, it has an image this, which will be this value, कुछ भी यहाँ पर जो value आ रही है, and half will also have this image, which will be this value. So that means for one single x, क्योंकि ये सारी values x की होंगी, है ना? For one single x, we are getting two y's. One will be positive, one will be negative. तो अगर एक single x के दो y's आंसर आ रहे हैं, so ऐसा तो कभी हमारे पास function नहीं हो सकता, right? So function क्या था? Function is the special type of relation where all the elements from the first set will have a unique image in second set. ये हमारे पास function था. Now जो मैंने आपको करने के लिए बोला था, that was in the video you must have done types of functions, है ना? And in types of functions, three types of functions were discussed. One was one function, right? One was onto function and one is many one function. ये तीन टाइप के functions उधर डिस्कस किए थे. Now before going to any example या any question, मैं आपको एक सिंपल से दो चीजें दिखाऊंगी. आप अपने आप मुझे बताओगे और आपको समझ आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट वन एंड ऑन टू का. ठीक है? सब लोगों के पास रजिस्टर होगा. प्लीज डू दिस. मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर. Okay. Let's say these are the two sets. One set is the set of states, as you can see, Gujarat, Kashmir, Punjab, Kerala, and the other is the dance forms. ठीक है? तो first you map all the elements from the first set to the second set जो कि related है. जो भी state की dance forms आपको दिख रही है on right hand side, उनको map कर दो. करो अपने आप. गुजरात की डांस फॉर्म्स आपको पता होंगी कौन कौन सी हैं? चेक, मैप कर दो. And
कश्मीर की करो, पंजाब की करो, केरला की करो. फर्स्ट यू मैप ऑल द डांस फॉर्म्स टू द गिवन स्टेट्स. देन उसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसा फंक्शन है. मैम डन. डन? सबने कर लिया? यस मैम. ऑल ऑफ यू डू इट. अपने आप कर लो, अगर गड़बड़ भी होगी तो. हाँ, डू इट. डन? यस मैम. Yes, ma'am. ओके, अभी मैं आपको चेक करवाऊंगी इसका आंसर. एक और करो उससे पहले. देखो, one set is your currency, Indian rupee, euro and yen, and the other set is your country set. So you map all the currency to the corresponding countries. जो भी आपकी country की currency है उससे उसको map कर दो. Do this one. Done? Yes, ma'am. Okay. Now see. आपने उधर 1 1 एंड ऑन टू चीज पढ़ी होगी, तो उन्होंने क्या कहा होगा कि 1 1 फंक्शन क्या होता है. जब भी हमारे पास फर्स्ट सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट मैप्ड है एंड इट हैज अ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन द सेकंड सेट, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, 1 1 फंक्शन. मतलब हर एक एलिमेंट फर्स्ट सेट का एक तो उसकी इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब एक ही इमेज होनी चाहिए, प्लस इट शुड बी डिस्टिंक्ट, मतलब अलग होनी चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि दो एलिमेंट्स सेम जगह मैप्ड है ना. So this type of correspondence where one element is mapped to only one element of the other set, 1 to 1 correspondence, एक के साथ सिर्फ एक, that is our 1 1 function, है ना. यही था 1 1 function, that every element from the first set should have a unique and distinct image in the second set. That was the definition of 1 1 function. Now इसी से हमने पढ़ लिया था many one function. अगर 1 1 नहीं है तो वो many one होगा. तो उसका क्या मतलब है कि कोई भी दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा, दे कैन बी मैप टू अ सिंगल एलिमेंट. तो यहाँ पर टू एलिमेंट्स हैव यूनिक इमेज. यूनिक होना तो जरूरी है फंक्शन के लिए, but they are not distinct. Both of them have the same image. So this is a many one function. Many one का क्या मतलब है, many to one. बहुत सारे एक ही जगह पर जाकर मैप हो रहे हैं. 1 1 का क्या मतलब है, 1 to 1, एक के साथ सिर्फ एक. राइट? ठीक है. यस मैम. एंड ऑन टू में क्या कंडीशन थी, ऑन टू स्पेशल है यहाँ पर. अभी तक हम जो भी 1 1 और मेनी वन देख रहे थे, वी वर सीइंग इट फ्रॉम ए टू बी. इधर देखा था ए टू बी, इसमें भी हमने फर्स्ट सेट से सेकंड सेट तक देखा था. बट ऑन टू में हम हमेशा सेकंड टू फर्स्ट की बात करते हैं, बी टू ए. जैसे इधर बोला जाता है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड सेट, सारे सेकंड सेट के एलिमेंट्स की एक प्री इमेज होनी चाहिए. एक से ज्यादा भी हो सकती है, बट एक तो होनी चाहिए. तो अगर आपके पास ऐसा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी एन ऑन टू फंक्शन. दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द सेकंड सेट शुड हैव अ प्री इमेज. उसकी पीछे एक मैपिंग होनी चाहिए. ऐसा भी हो सकता है. सो
this type of function is an onto function. इसको एक function होना जरूरी है, तभी आप one one onto many one की बात करते हो. If it is not a function, तो ये types of function की बात ही नहीं होगी. ठीक है, यही definitions थी. one one की one to one correspondence, many to one एक जगह जा सकता है, and onto में याद रखना second set के सारे elements, सारे बोल रही हूँ, all the elements from the second set should have a pre-image. Are the definition clear? Yes, ma'am. Okay, tell me this. मैं आपसे एक simple सा question पूछ रही हूँ. Tell me whether this is an onto function or not. सब लोग देखेंगे. You will raise your hand and tell me whether this is an onto function or not. Raise your hand. What do you think? Is this an onto function? Yes, Lakshmi. It is an onto function. All the It elements is of B have been mapped. Okay. Anybody else? Nila? Nila? Ma'am, You can it is not an onto function. Not an onto function. Why? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is an onto function. It is an onto function. Yes. Okay, ma'am. Andrea. Yes, Andrea. ma'am, it's an onto. Shreyasi. Okay, Shreyasi. Ma'am, it is an onto function, ma'am. Okay, Arushi. It is not a function because there are two images of one element. Good. क्या बोला था मैंने? Onto की बात correct देख रहे हो आप कि all the elements of the second set should have a pre-image. They have a pre-image. But onto पर जाने के लिए पहले उसको क्या होना चाहिए? Function होना चाहिए. So is this a function? One element has two images. Is it a function? No, It ma'am. is not a function. So we will not talk about onto function. Clear? Clear? Yes. Definition is clear to everybody, right? ठीक है, अब आ जाते हैं जो मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स बोले थे. देखो, जब आपने ये डांस फॉर्म्स मैप किए हैं स्टेट्स के साथ, तो आपने किया होगा गुजरात, भांगड़ा और रास से आपने मैप किया होगा, सॉरी गरबा और रास से मैप किया होगा, राइट? कश्मीर का डांस फॉर्म है धूमल, पंजाब का है भांगड़ा एंड गिद्दा, एंड केरला का है कथकली, राइट? नाउ आई एम आस्किंग यू, is it a one one onto many one function? You can raise your hand and tell me, is it one one onto many one function? Yes, Priyanshi. Ma'am, it is not a function. Very good. So it is not a function. We will not talk about one one onto or many one function, right? Concept is clear? ठीक है, आपने खुद मैप किया, आपने देख लिया एक एलिमेंट की दो इमेजेस आ रही हैं, ऐसा हो नहीं सकता है. सो इट इज नॉट अ फंक्शन. वी विल नॉट टॉक अबाउट मेनी वन फंक्शन. नाउ व्हाट अबाउट दिस? टेल मी. वन वन ऑन टू मेनी वन, आपने करेंसीज कंट्री के साथ मैप की थी. इज इट वन वन ऑन टू मेनी वन फंक्शन? Yes, Arunima. Ma'am, it's a 1-1 function. It is a 1-1 function. All of you can see that one element. First तो पहले देख लो कि ये function है या नहीं. So every element of the first set has a unique image. एक ही image है. अब मैं जरूर check कर सकती हूँ कि 1-1 है या नहीं. So one element is mapped to single element. All of them have unique and distinct image. So this is a 1-1 function. Now what about onto? Is it an onto function? Anybody who wants to answer? Is this an onto function? Yes, Jayati? No. No, ma'am. Why? Why? Jayati? Yes, Sana? Ma'am, because USA is still left. Right. So second set में USA does not have a pre-image. So it will not be an onto function. Clear? What about many one? Is it a many one function? Is it a many one function? You can raise your hand. Yes, Nishta? No,
ma'am, it is not a many one function, ma'am, because no two images have elements have that same image. राइट सो जब भी 1-1 होगा तो वो many one तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1-to-1 में many one correspondence आएगी ही नहीं. So since it was 1-1 function, it will not be many one, and here we have seen this is not an onto function. So this is the basic concept of 1-1, onto and many one. Now इसको हम अब questions में कैसे implement कर सकते हैं वो मैं आपको एक simple से example से समझाऊंगी, आप खुद ही मुझे बता दोगे. ठीक है, देखो हम लोगों ने 3 फंक्शंस पढ़े हुए हैं जो मैंने आपको क्लास 11th में बोले थे मोस्ट इंपॉर्टेंट है. वन इज मॉड्यूलस फंक्शन, वन इज सिग्नम फंक्शन एंड वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. याद है ये 3 फंक्शन? यस. Before starting that, ma'am, I had a small doubt in onto function. हाँ बोलो. So, ma'am, in the video, ma'am, you had shown like how to do the working for onto function, like ma'am, in a specific way. But ma'am, I had one doubt, like can't we just show it like range, like can't we just write it like range equal to codomain and then equate it that way and then find out if it's an onto function or not? So you will have to write the range set for that. ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो whether range is equals to codomain or not, उससे करना चाहते हो then you will have to tell that the range क्या आ रही है उसकी. If it is not equals to codomain, it will not be an onto function. ठीक है, तो the range set mention करना होगा. But if range is equals to codomain, तो वो एक single line लिखकर फिर workout करना, मतलब सिर्फ एक स्टेटमेंट आपने दे दिया कि रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, तो वहां पर कुछ वर्किंग नहीं आई, तो वहां पर मार्क्स कटने के चांसेस हैं. क्योंकि अब बच्चे क्योंकि क्या करते हैं, गेस वर्क करते हैं और फिर वो सीधा लिख देंगे कि रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, सो इट इज एन ऑनटू फंक्शन. दैट इज व्हाई मैंने उधर वर्किंग के लिए आपको बताया y इज इक्वल्स टू fx को y रखकर और फिर x इन टर्म्स ऑफ y निकाल कर ही आप उसको करो, सो दैट यू हैव कि प्री इमेज क्या आ रही है. नाउ इफ द प्री इमेज लाइज इन द फर्स्ट सेट, इट विल बी 1-1 ऑनटू, जो भी ऑनटू है या नहीं पता चल जाएगा. इस एग्जाम्पल में मैं फिर से डिस्कस करती हूँ वही चीज, ठीक है, जो वहां पर की है, मैं आपको इधर भी कर दिखा रही हूँ. सो दीज 3 फंक्शंस मैंने आपको बोले थे इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलस, सिग्नम एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर. क्विकली करते हैं, बताओ मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? इफ एनीबडी रिमेंबर्स व्हाट इज अ मॉड्यूलस फंक्शन? आपको अगर याद हो कैसे डिफाइंड होता है मॉड्यूलस फंक्शन? यस निष्ठा. Ma'am, if there are modes, like ma'am, like how to ma'am explain, ma'am, I don't know, ma'am. Like if there are modes into the modulus function. If no, how it is defined? It is defined for x less than 0, x greater than 0, and x is equals to 0. Value x less than 0 it is yes Arushi. Ma'am, it is minus x. Minus x, x less than 0, x equals to 0 पर 0, and x 0. greater than 0 पर X. x. Positive x. ये था, ये right. This was your modulus function. अगर कोई भूल चुका है तो याद करो, देख लो आप. अगर माइनस x अगर -2 है एंड मॉड में आप वैल्यू पुट करते हो, इट विल कम आउट टू बी 2, है ना. तो फॉर x लेस देन 0 एक माइनस साइन आना चाहिए. माइनस ऑफ माइनस विल ओनली मेक इट प्लस. तो ऐसे ही आपका मॉड्यूलस फंक्शन डिफाइन था. नाउ सिग्नम फंक्शन, किसी को याद है सिग्नम फंक्शन कैसे था? हाउ इज सिग्नम फंक्शन डिफाइंड? यस मैत्री. Ma'am, 1 if x is greater than 0, 0 Right. if x is equals to 0, and -1 if x is smaller than 0. गुड. सो 3 वैल्यूज लेता था. रेंज सेट में 0, 1 एंड -1 ही वैल्यूज आती हैं, एंड दिस इज हाउ योर सिग्नम फंक्शन इज डिफाइंड. एंड व्हाट अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? एनीबडी? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी को याद है? Greatest integer. So it takes values in the interval. So if you have x lying between 0 and 1, the value is going to be 0. If it is
1 and 2, the value is going to be 1. All the integer numbers will be your range, है ना? ऐसे डिफाइन था ये. And similarly you can go for the negative integers also. ये हमारे पास 3 फंक्शंस हैं. मैं तीनों को एक साथ डिस्कस कर दूंगी क्योंकि आपको डायरेक्ट यहाँ से समझ आ जाएगा, फिर मैं आपको लिखना बताऊंगी. अब देखो, मॉड्यूलस फंक्शन का हमने ग्राफ देखा था. कैसा होता है मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ? इट इज अ वी शेप्ड ग्राफ, है ना? जहां पर भी ब्रेक हो रहा है, इट इज ब्रेकिंग एट 0. आप देख सकते हो मॉड x की वैल्यू 0 होगी 0 पर, या अगर मॉड x प्लस 1 बोलती मैं तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू -1. तो जिस भी पॉइंट पर ये ब्रेक हो रहा होता है फंक्शन, उसी पर ये v बन जाता है. सो दिस इज हाउ योर मॉड्यूलस फंक्शन ग्राफ लुक्स लाइक. देन आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके प्लॉट कर सकते हो. अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, ऐसे किसी को याद नहीं है, ऑब्वियसली यू कैन टेक x की वैल्यूज एंड y की वैल्यूज एंड यू कैन प्लॉट इट. सिमिलरली अगर सिग्नम फंक्शन का ग्राफ आप देखो तो इधर कैसे है ये? Parallel. राइट. तो इधर है, जब x 0 है तो वैल्यू 0 है, सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 0 0. But for any number greater than 0, मतलब on the right hand side of 0, the value will always be 1. तो let's say this is 1. तो यहाँ पर ये एक hollow circle आ जाएगा because 0 पर 0 defined है, not at this point, right? And for the any other values, it will take value 1. And -1 कब आएगा? For any value less than 0. So this is your -1. This is how your signum function looks like. ठीक है. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है? सारी इंटेग्रल वैल्यूज ले रहे, इंटरवल पर डिफाइंड है. देख लेते हैं. 0 to 1, सो इफ दिस इज 0, दिस इज 1 2 and 3, तो 0 to 1 के लिए एक ही वैल्यू ले रहा है विच इज 0. तो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगी तो 0 to 1 के लिए वैल्यू ले रहा है 0. हियर 0 इज इंक्लूडेड एंड हियर 1 इज नॉट इंक्लूडेड. 1 to 2 के लिए ले रहा है 1 वैल्यू, तो 1 to 2 के लिए वैल्यू यहां पर आएगी 1. 1 इज इंक्लूडेड, 2 इज नॉट इंक्लूडेड. 2 to 3 के लिए वैल्यू ले रहा है 2, तो ऊपर जाएंगे, 2 इज इंक्लूडेड बट 3 इज नॉट इंक्लूडेड. ऐसे बनता है ग्राफ. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. ये मैंने आपको तीनों ग्राफ्स दिखा दिए हैं. जिनको भी अगर याद नहीं है कैसे प्लॉट करना था, जरूर इनकी प्लॉटिंग आनी चाहिए आपको. ठीक है, कर लेना अपने आप. जो भी डाउट हो अलग से मुझसे पूछ सकते हो. नाउ अब देखते हैं कि ये 1 1 है या नहीं, ये 1 1 ऑन टू है या नहीं. तो सिर्फ लेट अस फोकस ऑन मॉड्यूलस फंक्शन. ठीक है, अब बताओ क्या ये 1 1 ऑन टू है या नहीं. तो पहले 1 1 चेक करते हैं. 1 1 का क्या मतलब होता है? एवरी x or all x you should have unique and distinct image. So what do you think? Is it a 1 1 function? आपको पता है ये सारे ही फंक्शन मॉड्यूलस सिग्नम ग्रेटेस्ट इंटीजर R to R डिफाइंड होते हैं. Now see. Yes, ma'am. Is it a modulus function? Yes. Who is saying yes? Is it a modulus Ma'am, function? yes. It Ma'am, is it a. is one function. Okay, explain. बताओ कैसे? Ma'am, because every x has a unique y. Oh no, ma'am, it is not a one function. No, ma'am. It is not a 1 1 function. Others also No, think. ma'am. No, ma'am. बताओ, is it a 1 1 function? सब सोचो. ये आपके पास ग्राफ है, मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ. आपको बताना है कि ये 1 1 है या नहीं. तो 1 1 का क्या मतलब है? हर x के लिए एक ही इमेज आनी चाहिए और डिस्टिंक्ट आनी चाहिए. कोई भी दो एक्सिस के लिए सेम y नहीं आना चाहिए. बताओ, इज इट अ 1 1 फंक्शन? थिंक. बताओ. Who wants to answer? You can raise your hand. Yes, Pruha. No, ma'am. Not a 1 1 function. No, Give me ma'am. an example. Give me an example. कहाँ पर कैसे आया ये? Ma'am, for example, for -2 and 2, both the result will be 2. Very -2. good.
राइट. सो इफ यू सी x यही वैल्यूज है ना, तो अगर मैं 2 के लिए इमेज देखूं तो ये ग्राफ पर ही तो 2 के लिए इमेज आएगी, मतलब दिस विल बी माय आंसर, है ना. एंड फॉर अगर -2 देखूं तो लेंथ तो अगेन -2 उतनी ही आएगी. सो दिस इज माय आउटपुट. So for both the x's -2 and 2, my output is the same, which is 2. For -2 and 2, the output for modulus function is 2. Two elements have the same image. It is not a 1-1 function. कैसा function हुआ ये? This is a कैसा function हुआ? Many to one function. Many one It is function. many one function, right? It is a many one function. Good. Now check for onto. Onto में क्या check करना होता है? For all the y's, मतलब y's मतलब जो भी ग्राफ पर आपके पास है, it should have a pre-image. सारे y's के लिए आपके पास एक सारे y's के लिए, सारे आउटपुट्स के लिए आपके पास एक प्री-इमेज होनी चाहिए. बताओ, चाहिए onto होगा? Think. The set is from R to R. So the whole set R will be your B set. All the elements from this set should have a pre-image. Tell me, do all the y's have a pre-image in the first set? Yes, Lakshmi? The negative outputs are not mapped, so they won't be on onto function. Very good. Since we are saying the second set is our B set और ये R है, तो मतलब this whole ये हमारे पास सारी values किसकी हैं? Y की values. Now you can see for this I have, मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ. For this I have inputs as these two numbers, है ना, ये दो numbers हमारे inputs आ जाएंगे. Even if I take this, तो यहाँ पर मेरे पास दो x's हैं, ये x आ जाएगा, ये भी x आ जाएगा. So for all the positive numbers or even for 0, we do have a pre-image. सबके लिए pre-image आ जाएगी, सबके लिए x's मिल जाएंगे. But when you switch to negatives, कोई भी अगर एक negative y ले लोगे, तो उसके लिए आपको कभी भी x नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कोई भी ग्राफ हमारे पास डिफाइंड ही नहीं है इसके लिए. ऑल्सो इफ यू जस्ट लुक एट द मॉड्यूलस फंक्शन करता क्या है? मॉड्यूलस फंक्शन ऑलवेज गिव्स यू द पॉजिटिव वैल्यू. सो दैट मीन्स अगर मैं आउटपुट को -2 रख रही हूँ, तो मॉड्यूलस फंक्शन में आउटपुट तो कभी -2 आ ही नहीं सकता है. So that means all the negative numbers do not have a pre-image. So it is not an onto function. Is it clear? Yes, ma'am. ठीक है. So this is how you look for 1 1 and onto for modulus function. जब भी 1 1 की बात कर रहे हो, आपको देखना है कि सारे एक्सेस के लिए यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए. और जब भी आप 1 1 की बात कर रहे हो, तब आपको देखना है फॉर ऑल दी एक्सेस यू शुड हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज. बट जब आप onto की बात करते हो, all the output should have a pre-image. तो यहाँ पर इन y's के लिए आंसर नहीं था, so therefore it is not onto. Clear? लिखते कैसे हैं? मैं आपको लिखकर दिखा देती हूँ इसको. So since you have said this is not 1 1 and not onto, तो आप start ही ऐसे करोगे, क्योंकि 1 1 onto नहीं है, तो you just have to give one example. अगर होता तो हम general terms में लिखते. क्योंकि मैंने आपको उधर जो आपको मैंने वीडियो देखने के लिए बोली थी, उसमें मैंने आपको एक स्पेसिफिक मेथड सिखाया है, वो भी मैं यहाँ पर अभी डिस्कस कर लेती हूँ. सो लाइक इट इज नॉट 1 1, so you will say that let x is equals to +2 and x is equals to -2. We have two x's, x1 x2 भी लिख सकते हो. Let x1 is equals to +2 and x2 is equals to -2. Now modulus of x1 is +2, modulus of x2 is again 2. You can even draw an arrow diagram to make it more clear that 2 and -2, but और elements आप dot 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 करके दिखाओगे जरूर. They are mapped to 2.
So you will say this is not 1 1. Now the method that I taught you there is this. It is based on this concept only कि 1 1 होने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम हमेशा let करेंगे, let x f of x is equals to f of y. और अगर ये इम्प्लाई कर देता है x is equals to y तो हम बोलते हैं it is a 1 1 function. तो कॉन्सेप्ट क्या था, x की इमेज होगी f of x, y की इमेज होगी f of y, है ना. अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये लेट करके चल रहे हैं, दोनों इक्वल हैं. अगर ये दोनों इक्वल होंगे सो फॉर इट टू बी 1 1, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, सो फॉर इट टू बी 1 1, अभी तो ये मैनी 1 है, these two should also be equal. So that is why we always prove 1 1 by this concept, that we'll say let f of x is equals to f of y, and if it implies x is equals to y, it comes out as 1 1. तो देखो, this implies mod of x is equals to mod of y. दोनों तरफ mod है. If you remove mod तो क्या आ जाएगा, x is equals to plus minus y, or you can even say y is equals to plus minus x. Now you just take the values of x, आपको y मिल रहा है. देखो x आपने रखा था +2, एक रखा था -2, इमेज क्या आ रही है 2. So this is how you can see it is not equal to only x, it is also equals to minus x. So this implies that it is not 1 1. And फिर आप एक एग्जाम्पल दे दोगे, ये एग्जाम्पल आपने दे दिया +2 -2 का. ठीक है, यही था उधर मेथड. Ma'am. Yes. Ma'am, we have to show this part. Let f of x is equal to f of y part. Ma'am, if it is not true, then नहीं, also. नॉट ट्रू में आप सीधा एक एग्जाम्पल दोगे तो वो भी वर्क कर जाएगा. ये मैंने इसलिए समझाया है, वीडियो में ये था ना कि हम ये यूज क्यों करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई. तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप ऐसे भी लिखकर करोगे और फिर एग्जाम्पल दे दोगे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. नहीं तो अगर आप डायरेक्ट एग्जाम्पल देते हो उसमें ही फुल मार्क्स मिल जाएंगे, नॉट 1 1 में. ठीक है, Okay. इफ इट इज नॉट 1 1 यू जस्ट गिव वन एग्जाम्पल, फुल मार्क्स मिलेंगे. ओके, ऑन टू के लिए क्या करना होता है, क्योंकि ये ऑन टू भी नहीं था तो आप अगेन आप सिर्फ एक एग्जाम्पल दे सकते हो. तो आप बोलोगे लेट y is equals to let's say -2. For y is equals to -2, there does not exist an x belonging to the first set R such that f of x is equals to -2. Therefore it is not on to. क्योंकि मुझे मिला ही नहीं एक ऐसा एलिमेंट x जिसका आउटपुट -2 आए. हमेशा पॉजिटिव ही आउटपुट आएंगे, तो हम लोग इसलिए बोल देंगे इट इज नॉट ऑन टू. ऑन टू प्रूफ करने का क्या तरीका बताया मैंने वीडियो में, वो भी देख लो. मैंने ये बताया आपको कि हमेशा fx को y लिख लो. आपको पता ही है यही तो आउटपुट होता है. अगर हम इसको x ले रहे हैं, f of x ये है और इसी को हम y बोलते हैं, राइट. सो f of x को y लेट करो. अब जो भी आपका फंक्शन था वो mod x फंक्शन था, क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x, है ना. तो अगर y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x है तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि कोई भी y अगर आप लेते हो एज नेगेटिव तो आपको x नहीं मिलेगा फर्स्ट सेट में. सो यू विल गिव द एग्जाम्पल हियर नाउ. फॉर y इज इक्वल्स टू -2, there does not exist x belonging to the first set R such that the same statement will follow. Clear? Yes. तो आप Yes, ma'am. तो आप इसका आइडिया ना हमेशा ये जो 3 फंक्शंस हैं या कोई और भी है, अगर आपको सिर्फ थोड़ा सा समझना है तो आप उसका ग्राफ देख सकते हो, उससे आपको एकदम डायरेक्ट पता चल जाएगा. एंड देन यू गिव वन एग्जांपल. अब जैसे आप मुझे खुद अपने आप करके बताओ, फॉर दिस सिग्नम फंक्शन all of you think whether it is 1 1 and onto or not. करो, सिग्नम के लिए सोचो. आपके पास ग्राफ यहाँ पर है, ग्राफ से ही बताओ, लिखेंगे बाद में. Is it 1 1 and onto? Signum function. I want more people to participate. Try करो, देखो क्वेश्चन देखो. ये है सिग्नम फंक्शन. आपको देखना है
for all x's, सारे x, for all x's we should have unique and distinct image. किसी की भी सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, सबकी यूनिक, अलग और एक ही इमेज होनी चाहिए. अगर ऐसा है तो ये 1 1 हो जाएगा. All the x's, ये x's हैं, should have a unique y and distinct y. सेम भी नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए. Yes, Anuvanshika. Ma'am, it is not 1 1 1. It is not 1 1. Why? Ma'am, because ma'am, why like ma'am कोई the भी एग्जाम्पल. have more like ma'am all the inputs have the same image like 1 and -1. The output is same for all the inputs. 1 and -1. एग्जाम्पल सोच कर दो. आपने बोला for x 1 and -1 the output is same. Output for 1 is 1. For -1 it is -1. ठीक बोल रहे हो, it is not 1 1. Give me the example correct. करेक्ट एग्जाम्पल दो. यहाँ पर तो आउटपुट डिफरेंट हो गए. 1 और -1 अगर एग्जाम्पल लोगे, 1 का आउटपुट 1 है, -1 का आउटपुट -1 है. Ma'am, like अगर हम 1 लेंगे तो the output is 1 and if we हाँ take 2 then also the output will be हाँ. 1. So Ma'am, right. So for all the numbers greater than 0, the output is the same. है ना? 1 के लिए भी 1 है, 2 के लिए भी 1 है, 3 के लिए भी 1 है. So if you take any two x's, इधर से लें या इधर से लें, the output is going to be the same. So this is not a 1 1 function. The 1 2 is mapped to the single element. Even 3 is mapped to single element 1. So it is not a 1 1 function. Right? ये सबको समझ Yes, आता है. It is not 1 1 function. Okay. Now tell me onto. Who will tell me whether it is onto or not? Is it onto? Onto के लिए क्या देखना होता है? फिर से देख लो, मैं आपको फिर से बता देती हूँ. For onto you will check for all y's. Y क्या है? The second set के सारे elements. So for all y's, all real numbers, you should have a pre-image. That means ये सारे y's के लिए, ये सारे y's के लिए एक pre-image होनी चाहिए, x आना चाहिए. So tell me, who will tell me whether it is onto or not? For all y's, for all real numbers, you should have a pre-image. तो y मतलब पूरा y axis के लिए एक x मिलना चाहिए. जरूर जरूर एक x तो मिलना ही चाहिए. तो ऐसा हो रहा है क्या यहाँ पर? ये सबको समझ आना चाहिए. जानवी, आंसर करो. जानवी, दृष्टि, Ma'am, यस मैत्री. Ma'am, this is not an onto function. Why? मैम क्योंकि जो एलिमेंट है वो लाइक मैम वो फॉर लाइक जस्ट मैम नंबर्स देयर इज नो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक्स. Right. Which number? Give me an example. मैम जैसे मैम 2. Right. So here you can see सिर्फ हमारे पास x किसके लिए डिफाइंड है? एक तो 0 या फिर हमारे पास 1 या फिर -1. यही तो 3 एलिमेंट्स हमारे पास रेंज सेट के एलिमेंट्स हैं. बट अगर मैं 2 ले लूं, y एक्सिस पर तो 2 भी आ रहा है, इवन -2 भी आ रहा है. इनके लिए मुझे कोई कॉरेस्पॉन्डिंग x नहीं मिल रहा है. ग्राफ है ही नहीं 2 और -2 के लिए, ग्राफ है ही नहीं 3 और -3 के लिए. सो बिकॉज पूरा सेट R था, ये y था मेरा, इसके लिए मैं एक्सेस देख रही थी, तो x सिर्फ 1 0 और -1 के लिए डिफाइंड था. therefore it is not an onto function. You can say for y is equals to 2, or you can take any other example. There does not exist x belonging to the first set R such that f of x is equals to y.
So therefore it is not an onto function. I hope it is clear to everybody. किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, अभी पूछ लो. कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, लिखना आ जाएगा आपको. पहले ये समझना जरूरी है कि 1 1 on 2 कैसे देख रही है. डन? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके चलो, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फॉर टुडेज क्लास. बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, व्हाट डू यू थिंक? इज इट 1 1 and on 2? थिंक एंड रेज योर हैंड. 1 1 में क्या देखना है? फॉर ऑल एक्सेस, सारे एक्स के लिए यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज. कौन बताना चाहते हैं? इज इट 1 1? यस प्रूहा. No, ma'am, it's not 1 1. Why? Example. Ma'am, for f of 2.3 and f of 2.5, the value will be 2. Good. So if you take x as 2.3 and 2.5, the image is the same. This is our y, corresponding y, which is 2. Therefore, it is not a 1 1 function. Even if you take any value between 1 2, the output is going to be 1. Or even if you take from 0 to 1, the output is going to be the same. Since interval based defined है, तो कोई भी दो x's के लिए same ही y आ रहा है. Therefore, it is not a 1 1 function. Right. On to. Now anybody on to के लिए try करो. On to में क्या देखना होता है? फिर से देख लेते हैं. On to में हम y के लिए देखेंगे. This is my y. The whole set B. This is my y. I will check whether I am getting for all y's के लिए एक x मिल रहा है या नहीं. So tell me whether it is on to or not. For all y's, सारे y's के लिए you must get an x. मिल रहा है ऐसा? सोच कर बताओ. Yes, Nila? Ma'am, it is not an onto It function. is not. Why? Ma'am, for all the y's, ma'am, we don't have an x. Like, ma'am, 0.5 if we'll take, ma'am, we don't have. Very good. For 0.5 we do not have x. आप देख सकते हो कोई ग्राफ ही नहीं है 0.5 के लिए. So if you take any y other than the integers, है ना, 1 2 0 -1, इनके अलावा अगर कोई भी नंबर उठा लेते हो रियल लाइन से, so we do not have the graph. That means it is not an onto function. नहीं आएगा, because you can see the range for greatest integer function is the only integer numbers. तो ऑब्वियसली अगर पूरा सेट R है और सिर्फ रेंज सेट कितना है? Z, तो रेंज Z इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन. तो जब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन है ही नहीं, सो दैट मीन्स डेफिनेटली देयर आर फ्यू एलिमेंट्स विच डू नॉट हैव प्री इमेज. सो यही कॉन्सेप्ट था वहां पर जो समझाया हुआ था. इफ रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन होता है. If it is not equals to codomain, it is not an onto function. क्योंकि अगर इस केस में देखें, so your range is equals to codomain. आ रहा है? रेंज और रेंज के एलिमेंट्स हैं 2 3 और कोडोमेन में भी सिर्फ 2 3 है. सो एवरी एलिमेंट विल हैव अ प्री इमेज. बट अगर इस केस में देखोगे, सो हियर रेंज का एलिमेंट सिर्फ एक है. रेंज हमारे पास 1 है, बट कोडोमेन में मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं 1 and 2. तो जब भी रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन आएगा, सो डेफिनेटली देयर आर एलिमेंट्स विच डू नॉट हैव प्री इमेज, दैट आर नॉट मैप्ड इन द फर्स्ट सेट. सो इट विल नॉट बी एन ऑन टू फंक्शन. तो वही यहाँ पर हो रहा था इन तीनों ही केसेस में. दैट इज वाई दे वर नॉट 1 1 and on to. Are you all clear with the concept of 1 1 and on to? Yes, ma'am. Concept Yes, clear ma'am. है सबको?
ठीक Yes, है? ma'am. So we will stop here for today. आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ. एक्सरसाइज 1.1 तो सबको कंप्लीट करनी ही है. Now for 1.2 I will tell you which all questions you can write and do. Although in video 5 मैंने आपको लिखना सिखा दिया है. अगर अभी भी नहीं आया I will give you one more class. After the holidays on Tuesday we will again do 1-1 and on-to function. हम इसको अच्छे से finish up करेंगे और इसके बेसिस पर हमारे पास कुछ एक्टिविटीज हैं लैब मैनुअल में, वो भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है? फिर इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे एंड विल आल्सो टेक अ टेस्ट इन द नेक्स्ट वीक देन. तो अभी के लिए आप क्या करो, यू रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ 1-1 एंड ऑन टू. वॉच द वीडियो 5. यूट्यूब पर जो वीडियो 5 मैंने अपलोड की हुई है उसको फिर से देखो. एंड आज मैंने आपको PDF सेंड की है. उसमें एक्ट 1-1 और कॉमा ऑन टू करके मैंने PDF भेजी है, उसको देखना. उसमें एरो डायग्राम्स हैं, उनमें मैपिंग अपने आप करना. जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था करेंसी और कंट्री के बीच में आपने मैपिंग की. एंड देन यू जस्ट फाइंड आउट विच वन इज 1-1 एंड विच वन इज ऑन टू. इसको कंप्लीट करके आना. ठीक है? सेकेंड PDF जो मैंने आपको आज व्हाट्सएप पर सेंड की है उसमें जस्ट मैप दी एलिमेंट्स. एरो डायग्राम्स में एलिमेंट्स अपने आप मैप करो एंड यू जस्ट सी विच वन इज 1-1 विच वन इज ऑन टू. फाइन? Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. So complete exercise 1.1. Revise the concept of 1-1 and on 2. Arrow diagram में कर लेना and video 5 देख कर आना है. Then we will complete the chapter on Tuesday now. Okay. Okay, ma'am. Okay. Thank you Okay, ma'am. everybody. Happy holidays. Happy Holi. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Happy Thank you, Holi. ma'am. Same to you. Happy Holi to you too. Okay. Bye. Bye everybody. Bye, ma'am.